یہ اچھی بات ہے؟ کیا اولاد کو صرف دنیا سکھانا کیا یہ اچھی بات ہے؟ دین سے دور رکھنا کیا یہ اچھی بات ہے؟ دیکھیں اس مرد صالح نے کثیر مال نہیں چھوڑا. اس سے پتا چلتا ہے کہ جو نیک ہوتا ہے اس کی اولاد نیک ہو تو اللہ پاک ضرور برکت عطا فرماتا ہے. اور برکت یہ حلال میں ہوتی ہے، حرام میں نہیں. ہمیشہ یاد رکھیں برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے، کوالٹی میں ہے. اب آپ دیکھیں نا خنزیر ایک وقت میں کتنے بچے جنتی ہے، لیکن بکری ایک وقت میں 1 یا 2، بہت ہو گئے تو 3. لیکن اللہ پاک نے بکری میں کتنی برکت عطا کی کیونکہ حلال جانور ہے. ابھی بقرہ عید آئے گی نا، جب حجی حج پر جاتے لاکھوں حاجی وہاں پر قربانی کرتے، پورے جہاں میں پورے ورلڈ میں جہاں جہاں لوگ رہتے وہ لوگ بھی قربانی کرتے. لیکن کبھی یہ نہیں سننے میں آیا کہ بکرے کی کھیپ یہ جو ہے یہ کم پڑ گئی. مال آتا ہے بکتا ہے، پھر آتا ہے، پھر بکتا ہے، پھر آتا ہے. تو برکت یہ حلال میں ہے، حرام میں نہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہے، ہمیں اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے، ہمیں اپنی اولاد کو دیندار بنانا ہے. صرف دنیا دار بنا کر کیا ہو جائے گا؟ کئی ایک ایسے ہے دنیا دار بنایا، اپنے اولاد کو بہت پڑھایا، MBBS کرا دیا جناب، انجینئرنگ کرا دی، ٹیچر بنا دیا، کیا کیا بنا دیا، سب سکھا دیا. نہیں سکھایا تو رب کا کلام نہیں سکھایا. اور جب یہ اولاد بڑی ہوتی ہے اور جب باپ کی نافرمان بنتی ہے، جب باپ کی آنکھ کھلتی ہے میں نے کیا کیا. اچھا باپ کو ٹینشن کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اس کے بڑے ہونے کے بعد بھی یہ ٹینشن نہیں ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، یہ ٹینشن ہوتا ہے کہ میری فرما برداری نہیں کرتا. اگر وہ بچپن میں ہی اولاد کی تربیت اس طرح کرتا کہ یہ اللہ کی فرما بردار بنے، تو جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری ضرور کرتا ہے. جو باپ اپنی اولاد کو اللہ کا فرما بردار نہیں بنا سکتا وہ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دے کہ اس کی اولاد اس کی فرما بردار بن سکتی ہے. ہو ہی نہیں سکتا. کہ آپ سوچیں یہ اللہ کی نافرمانی کرے، نماز نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، غلط کام کرے، نشے کی طرف جا رہا ہے، جانے دے جناب. میرا بیٹا کلب میں جا رہا ہے، ہاں لے پیسے، اور کتنے چاہیے، برے دوستوں میں بیٹھ رہا ہے، مجھے پڑھی نہیں ہے. آج مسلمان بچے اسی میں تو برباد ہو رہے. نشے نے مسلمانوں کو گھیر لیا ہے، بدکاری نے مسلمانوں کو گھیر لیا ہے. معاذ اللہ انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ، یہ ایسے ایسے ایپ آ چکے ہیں موبائل میں. یہ موبائل جو تباہی مچا رہا ہے، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ. کئی کیس ہمارے سامنے آ رہے ہیں. معاذ اللہ مرتد ہو رہی ہے ہماری بچیاں. ہم کہاں پڑے؟ ہمیں ہوش ہی نہیں ہے. ارے اگر آپ نے اپنے بچوں کو اگر موبائل فون دیا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، یو ہیو دا رائٹ ٹو چیک ہز موبائل. آپ کو اس کا موبائل چیک کرنا پڑے گا. اگر یہ انسٹاگرام یوز کر رہی ہے میری بچی تو یہ انسٹاگرام پہ کیا کر رہی ہے؟ یہ کس سے چیٹ کر رہی ہے؟ یہ اپنے فرینڈ سے چیٹ کر رہی ہے یا معاذ اللہ فرینڈ کے نام پر، پڑھائی کے نام پر کسی غیر مرد سے باتیں کر رہی ہے؟ اگر آج ہم نے اس بات کا خیال نہیں رکھا، وہ دن دور نہیں جب خون کے آنسو رونا پڑیں گے، خون کے آنسو رونا پڑیں گے. ہاں ہو رہا ہے. آپ اور میں اسی معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم سب جانتے ہیں. کئی کیس ہے ہمارے پاس. میں چونکہ میرا تعلق ٹیچنگ فیلڈ سے ہے، میں کلاسز چلاتا ہوں، پڑھاتا ہوں. میں اسکول میں، مطلب پہلے اسکول میں بھی پڑھاتا تھا، اب کلاسز میں ٹیچنگ کرتا ہوں. میرے پاس ایک 10th کی اسٹوڈنٹ تھی، تو پڑھائی میں بالکل ہی توجہ نہیں. میں کافی دن سے دیکھ رہا تھا اس کے بیہیویئر میں بڑا چینجز آ گیا. میں حیران کہ یار 10th کے ایگزامز قریب آ گئے، بورڈ قریب ہے، اور اس کو پڑھی نہیں ہے. یہ ایک دم مطلب الگ ہی اس میں لگ رہی ہے. تو میں نے اس کی بہن سے پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ اس کا ذہن میں دیکھ رہا ہوں کچھ منتشر ہو گیا ہے. تو اس نے کہا کہ سر اصل میں انسٹاگرام پہ کوئی کسی اس کے ساتھ اس کی چیٹنگ شروع ہو گئی، اور معاذ اللہ وہ غیر مسلم نکلا، اور اس نے اسے اتنے خواب دکھایا، یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ تو اس کے ساتھ
यूं मतलब भागने तैयार थी। अब मैंने बच्चों की अम्मी को और मैं उनको लेकर बैठे और मैंने उन्हें समझाया कि क्या ये इस्लाम से बढ़कर, ईमान से बढ़कर कुछ नहीं है। ईमान है तो सब कुछ है, ईमान के बिना कुछ नहीं है बंदा। और ये खाली जवानी का जोश है, ये सब खत्म हो जाएगा, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएंगी। यूं तू करके मैंने समझाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो समझकर अपने कदम पीछे ले गए। अगर उन्हें समझाने वाला नहीं मिला तो, अगर सर उस तरीके का नहीं होता तो, अगर सर दीनदार नहीं होता, वो भी दुनियादार होता, तो क्या होता? माज़अल्लाह बच्ची मुर्तद हो जाती। अल्लाह, क्या कर रहे हैं हम? अच्छा, हम कहेंगे जनाब हमारे घर में तो नहीं हो रहा है, हमारा घर तो सेफ है। भाई पड़ोस में आग लगी है ना, घर में आग लगने टाइम नहीं लगेगा। हम सोचेंगे यार वहां तो हो रहा है ना, मोहल्ले में लगी, अपने घर में नहीं। आपके घर में भी आ सकती है आग। आपको अभी से होश के नाखून लेने होंगे, आपको होश में आना पड़ेगा। औलाद की अच्छी तरबियत ये माँ बाप का अहम फरीजा है। आप जानते हैं, अगर कोई शादीशुदा नहीं है, गैर शादीशुदा है मर्द, अभी उसकी शादी हुई नहीं, उस पर औलाद के हुकूक जारी हो गए। सही है हजरत? अभी से औलाद के हुकूक जारी हो गए। वो क्या? नेक औरत से निकाह करे, नेक औरत से निकाह करे। ये सबसे पहला औलाद के हुकूक है। जो गैर शादीशुदा है वो भी सुन ले, गैर शादीशुदा है ना, वो भी सुन ले कि सबसे पहला आपकी औलाद का हक यह है कि नेक बीवी के साथ आपका निकाह हो जाए। सूरत बहुत अच्छी है जनाब, आज हम क्या सोच रहे हैं? हाँ, सूरत दिखने में यू हो, तू हो, रिजेक्ट पे रिजेक्ट किए जा रहे। बच्चियों को जा रहे घरों पर, देख रहे ये थोड़ी सी दिखने में काली है, अच्छा, ये थोड़ी सी इसकी नाक यू है, अच्छा, ये थोड़ा सा चलने, अरे क्या बेवकूफ हो गया है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, अपने लिए आका फरमाते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, अपने लिए दीनदार औरत की तलाश करो। आप एक बात जानते हैं, बीवी कितनी खूबसूरत हो, कितनी ही स्मार्ट हो दिखने में, अगर अखलाक अच्छे नहीं है ना, मोहब्बत ज्यादा दिन नहीं रहेंगी, मोहब्बत ज्यादा दिन नहीं रहेंगी। अगर दिखने में अच्छी नहीं है, उसके अखलाक अच्छे, वो दीनदार है, मोहब्बत हमेशा के लिए कायम रहेगी। बेशक, ये लिख के ले ले आप, ये लिख के ले ले। आज हमारे नौजवान को समझना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। ये औलाद के हुकूक में से कि बंदा सबसे पहले अपने लिए नेक बीवी की तलाश करे, उसके बाद क्यों? क्योंकि कहा गया है मां, बच्चे का सबसे पहला मदरसा ये मां की गोद होती है। मां की गोद, जो यहां से सीखता है बच्चा, वही बड़ा होकर सीखता है। इसीलिए तो वलियों के सरदार हुजूर गौसे पाक ने पहले दिन ही मदरसे में 18 पारे पढ़कर सुनाए, नहीं सुनाए? सुभान अल्लाह। जानते हैं ना, उस्ताद साहब ने पूछा, बेटा आज तो आपका पहला दिन है मदरसे का, आपने 18 पारे पढ़कर सुना दिए, कहां से याद किए? आपने कहा, उस्ताद साहब दरअसल मेरी माँ ये 18 पारे की हाफिजा है। जब मैं मेरी माँ के पेट में था, मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी, मैंने माँ के पेट में सुन सुन कर याद कर लिया। सुभान अल्लाह। ऐसी माएँ होती थी पहले कि जब औलाद पेट में हो तो कुरान पाक की तिलावत करती थी, औलाद पेट में हो तो दुरूद पाक की कसरत किया करती थी। और आज विलादत का वक्त करीब है, माज़अल्लाह गाने देखे जा रहे, विलादत का वक्त करीब है, बेहयाई के मनाजिर देखे जा रहे। अच्छा, बच्चा पैदा होने के बाद भी उसे मोबाइल देकर ये नहीं बताया जा रहा है कि नाज शरीफ सुनाई जाए, अल्लाह का जिक्र सुनाया जाए, माज़अल्लाह कार्टून लगा के दिया जा रहा है, कार्टून सुनाया जा रहा है। क्यों? अरे बच्चा इससे चुप होता है। अरे बच्चा इससे चुप नहीं होता, बच्चे को समझता नहीं है कार्टून क्या है, बच्चा सिर्फ साउंड से खुश होता है। मोबाइल का जो साउंड आता है ना, उससे खुश होता है। आप बचपन से उसे नाते पाक सुनाते, वो बड़ा होकर नाते पाक सुनकर ही चुप बैठा होता। बच्चे को क्या समझता है कार्टून क्या है, नात क्या है? ये तो आप पर था कि आपने उसकी घुट्टी में ये पिलाना था कि बेटा बचपन से मैं तुझे नाते पाक सुनाऊंगी। बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक दिन आपने अपनी वालिदा को पूछा तहदीस नेमत के तौर पर, अम्मी जान आज तक मेरी
तहज्जुद भी कभी कजा नहीं है। बाबा फरीद इतने बड़े अल्लाह के वली, आपने अपनी वालिदा से पूछा, अम्मी जान आज तक मेरी तहज्जुद भी कजा नहीं हुई। माँ ने कहा, बेटा तेरी तहज्जुद कैसे कजा होती? मैंने तुझे जब भी दूध पिलाया हूँ बावजू होकर पिलाया हूँ, सुभान अल्लाह। बावजू होकर दूध पिलाया हूँ। ये तेरी नमाजें कैसे कजा होती? और आज हमारा हाल क्या है? हाँ, वालिद मस्जिद में है नहीं, वालिदा घर में नमाज नहीं पढ़ रही है। ऐसे घराने माज अल्लाह पूरे वक्त की नमाजें पढ़ी नहीं जाती है। अच्छा, बाप भी क्या करेगा? जुमा के दिन अपनी दुकान की या तो छुट्टी करेगा या तो जल्दी आ जाएगा। बच्चे को नहलाने धुलाने के बाद कुर्ता पैजामा पहना दे, बच्चे का हाथ पकड़े, चलो बेटा, कहा? अब्बा जुमा है ना, नमाज पढ़ने जाना है। ठीक है, अब्बा पहुंचे खुतबे के दिन। अब्बा को भी तौफीक नहीं कि मस्जिद में जगह मिले, अब्बा को मिली मस्जिद के बाहर जगह, है ना? तो मस्जिद हो गई फुल, 12:30-1 बजे मस्जिद हो जाती है पैक जुमा में। अब अब्बा ने क्या किया? बच्चे को बाहर लेकर बैठे नमाज के लिए। जैसे इमाम साहब की 2 रकात फर्ज नमाज खत्म हुई, दुआ हुई, अब्बा गायब, बच्चा गायब। हाँ, मस्जिद की तौफीक नहीं। अच्छा, बड़ा हो गया बच्चा, अब उसने क्या करना है? अब्बा ये करते थे, अब्बा मुझे इतने बजे लेके निकलते थे घर से, अब मैं बड़ा हो गया, अब अकेला जा सकता हूं, अब्बा का हाथ पकड़ने की मुझे जरूरत ही नहीं। अब मैं क्या करूंगा? मैं भी मस्जिद में लेट जाऊंगा। मेरे को मस्जिद में नहीं जाना है, मेरे को बाहर बैठकर नमाज पढ़नी है। क्यों? मुझे फौरन घर भागना है ना। अब्बा यही करते थे। अरे वो वालिद सोचे, अगर उसने बच्चे का हाथ पकड़कर जुमा का नमाजी उसे बना दिया, अगर यही बाप उसका हाथ पकड़कर फजर की नमाज के लिए ले जाता, अगर यही बाप उसका हाथ पकड़कर जोहर असर मगरिब इशा में ले जाता, तो तुम्हारा बच्चा बड़ा होकर खुद नमाजी बनता। हमने बच्चों की तरबियत ही ऐसी नहीं की। हम तरबियत, क्योंकि हम खुद तरबियत याफ्ता नहीं है, हमने अपनी तरबियत की नहीं, तो हमारी तरबियत कैसी हो सकती है? ये नेक औलाद ये अल्लाह पाक की तरफ से सबसे बड़ा इनाम है, सबसे बड़ा इनाम। बरोज़े क़ियामत एक शख्स के मर्तबा जन्नत में बढ़ाया जाएगा। वो पूछेगा, मौला मैंने तो नेकियां की नहीं। हुक्म खुदाबंदी होगा कि तेरी औलाद जो तूने नेक छोड़कर मरा था, ये तेरे लिए इस्तगफार किया करता था, ये तेरे लिए इसाले सवाब किया करता था, इस वजह से तुझे ये दिया जा रहा है, ये तेरे दर्जे बुलंद हो रहे। तो नेक औलाद के वजह से ऐसे दर्जे बुलंद होते हैं। एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान के पास से गुजरे, देखा उस कब्र पर अजाब हो रहा है। कुछ दिनों के बाद फिर उस कब्रिस्तान के पास से गुजरे, कब्र के पास देखा तो उस पर रहमत के फूल बरस रहे। अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार में, मौला इसका माजरा क्या? हुक्म खुदाबंदी हुआ, जब ये मरा था, इसका इंतकाल हुआ था, ये शराबी था, ये गुनाहगार था, लेकिन आज इसका बच्चा पहले मर्तबा मदरसा गया, उसे उस्ताद साहब ने कहा, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जब उसके बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, मेरी रहमत को यह गवारा ना हुआ जिसकी औलाद मुझे जमीन पर रहकर रहमान और रहीम पुकार रही हो, उसकी औलाद को मैं जमीन के अंदर अजाब में मुब्तला रखूं। उसके बच्चे के बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से मैंने उस पर से अजाब को उठा लिया। यह है प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें गौर करना पड़ेगा कि अगर हम अपनी औलाद की अच्छी तरबियत नहीं कर रहे तो यह औलाद हमारे लिए परेशानी का बाइस ना बन जाए। इसीलिए अपनी औलाद को अच्छी तालीम दे। पता है, जो औलाद आलिम दीन बनती है, जो औलाद हाफिज कुरान बनती है, अल्लाह पाक उनके वालिदैन को कैसे इनामात से नवाजता है, आइए सुनते हैं। जो अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाए, आमिल कुरान बनाए या आलिम कुरान बनाए, अल्लाह पाक कियामत वाले दिन हाफिज कुरान, आमिल कुरान के वालिद